Hello students, welcome back. Let us again start a new tutorial series on the topic circles. And in circles, we are going to discuss a very important concept which is tangent to a circle. So before I start tangent, let's recall your 9th class concept जहाँ पर आपने सर्कल, कोड, सीकेंट के बारे में पढ़ा था. राइट तो सर्कल क्या है बेसिकली सर्कल इज अ लोकस ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स which are at equal distance from a fixed point. That fixed point is known as center and the distance is known as radius. So circle is a path of set of points like this. It is a circle and the fixed point from where you measure the distance, this distance, it remains always constant. ये हमेशा क्या है constant रहेगी, fixed रहेगी. This fixed point is known as center and this is known as radius. तो it is a circle with given center and given radius. तो जब आप 9th क्लास में थे तो आपने कोड और सीकेंट के बारे में पढ़ा था. ठीक है, सीकेंट, दिस इज अ सीकेंट. बाहर से पॉइंट अंदर दो पॉइंट्स पे कट करती है सर्कल को, दैट इज सीकेंट. एंड दिस इज अ कोड, दिस इज अ कोड. नाउ आवर टॉपिक इज टेंजेंट टू अ सर्कल. बेसिकली टेंजेंट टू अ सर्कल मींस व्हाट? टेंजेंट, this secant becomes a tangent if these two points coincides. It means जो लाइन बाहर से गई सर्कल को दो पॉइंट पर ना हो कट करके एक ही पॉइंट पे कट करे. तो if these two points coincide it means what? सर्कल, ये पॉइंट है यहां पर बाहर से, it means ये दोनों पॉइंट ना होकर सिर्फ एक पॉइंट रह जाए आपके पास, तो इट इज अ टेंजेंट. इट मींस टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट अ सर्कल वन एंड ओनली वन पॉइंट. सिर्फ एक पॉइंट पे जो टच करती है या कट करती है, दैट इज नोन एज टेंजेंट. तो दिस इज पी ए बी, दिस इज अ tangent line to a circle. And what about A? This A is known as point of contact. This is point of contact. Right? Now, very important theorem. बहुत बढ़िया थ्योरम है, काफी काम की है और क्वेश्चन सोल्व करने में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है. क्या थ्योरम है कि जो टेंजेंट है, the tangent at any point on a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. It means जो tangent line है आपकी point of contact पे, if you draw a radius, obviously radius कहाँ से लोगे आप? center से लोगे. तो line from center to the tangent at point of contact, that is always perpendicular. It is a theorem or it is a result also, and it is very useful in solving some questions. So coming to exercise 10.1, it is very easy exercise. The first question is, how many tangents can a circle have? So if I make a circle, so it may have infinite tangents like this. This is a tangent, this is a tangent, this is a tangent. So circle may have infinite tangents. But अगर एक बात इनपुट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे कि एक पॉइंट पर कितनी टेंजेंट होंगी, तो ये जो डेफिनेशन टेंजेंट की है, एक पॉइंट पर सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, दिस वन ओनली, और इस पे सिर्फ दिस वन. बट अगर सिर्फ सर्कल है पूछा तो इनफाइनाइट टेंजेंट वहां पर हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सा है, फिल इन द ब्लैंक्स है. ये जो डेफिनेशन मैंने बताई आपको वहीं से आपका सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए स्पेशली. क्वेश्चन है, a tangent PQ at point P of a circle of radius 5 cm meets at a line through the center O at a point
Q. So that OQ is 12 centimeter. Find PQ. So you are given a circle and a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeter. This is 5 centimeter. Meets at a line through the center O at a point Q here. So this point is Q. Center is O. And so that the OQ is 12 centimeter. This is 12 centimeter. So find PQ. आपको PQ फाइंड करना है. This one. It means length of tangent आपको फाइंड करनी है. और it is very very easy क्योंकि अभी हमने थ्योरम पढ़ी कि जो रेडियस है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है. Right? So you can use Pythagoras here. So Pythagoras यूज करेंगे PQ square plus OP square equals to OQ square using Pythagoras. So PQ square आपको PQ फाइंड करना है. PQ square equals to OQ 12 minus OP 5. It is 144 minus 25 is 119. So PQ is under the root 119 centimeter. प्लस माइनस मत लगाना क्योंकि लेंथ है ना पॉजिटिव हो. So 10.1 is very very easy exercise and the theorem आप उसको थोड़ा अच्छे से देखें, रिजल्ट जो है अच्छे से याद करें. Next is how many tangents we can draw from an external point to a circle. एक सर्कल है आपके पास. इस सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ पर. कितनी टेंजेंट आप इस पे ड्रॉ कर सकते हैं? So कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? एक पॉइंट से ओनली 2 टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ. और ऐसा हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन में, जो चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे वहां पर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल है. एक पॉइंट से कितने टेंजेंट कर सकते हैं ड्रॉ, आप वहां पर करके देखेंगे इस चीज को. तो ओनली वी कैन 2. नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीस 2 टेंजेंट्स? ये कुछ रिलेशन भी तो होगा ना. तो रिलेशनशिप बताना है. ये पॉइंट P है, ये A है और ये B है. नाउ द लेंथ ऑफ P एंड PB, व्हाट इज द रिलेशनशिप? So they are equal. आप एक्टिविटी से भी, कंस्ट्रक्शन से, एज अ थ्योरम, तीनों तरीके से बता सकते हैं कि these 2 tangents are equal. But as a theorem सबसे पहले जानेंगे कि as a theorem why they are equal. So there is a theorem. क्या नाम है थ्योरम का? एंड आसान और सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है. Theorem is tangents drawn from an external point to a circle are equal. क्या थ्योरम है कि एक बाहर एक पॉइंट दिया है, उससे आपने 2 टेंजेंट ड्रॉ की, दोनों इक्वल होंगे. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस एज अ थ्योरम. तो सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन. क्या गिवन है? सर्कल में क्या गिवन है? सेंटर एंड रेडियस. अब लिखेंगे गिवन C whose center is O, radius is R. तो सेंटर इज O और रेडियस है, तभी तो आपने उस सर्कल को बनाया है ना. ये सर्कल जो बना रखा है, बिना रेडियस कैसे बना दोगे आप इस सर्कल को? तो वी आर हैविंग अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, राइट? ओके, इसमें है क्या फिर? इन विच PA एंड PB आर 2 tangents intersecting at A and B on circle. करना क्या है? टू प्रूव क्या करना है? PA equal to PB. This is we are going to prove. ये तो प्रूव करना है, जो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स है they are equal. अब प्रूफ करने से पहले तो कंस्ट्रक्शन बनेगा यहाँ पर. तो कंस्ट्रक्शन करते हैं. क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में? इसको ज्वाइन कर लीजिए, बस इसको भी ज्वाइन कर लीजिए और इसको भी ज्वाइन कर लीजिए. तो लिखेंगे ज्वाइन OA, OB एंड OP. तो कुछ समझ में आ रहा है देखने से कि आपके पास अब 2 ट्रायंगल बन गए. यू आर हैविंग PAO एंड PBO. देयर आर 2 triangles, PAO and PBO. And
हैव रिमेंबर इन 9th क्लास, जब भी हम दो चीजों को, दो डिफरेंट थिंग्स को इक्वल प्रूव करते थे, टू डिफरेंट साइड्स और टू डिफरेंट एंगल्स, इफ यू आर गोइंग टू प्रूव देम इक्वल, क्या करते थे? देखते थे कि वो दोनों किन ट्रायंगल्स के पार्ट है, उन दोनों ट्रायंगल को पिक करते थे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते थे। यस, यही करना है। तो प्रूफ में आप क्या करेंगे, इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO टेक टू ट्रायंगल्स। बहुत आसान सी थ्योरम है बच्चों, तो इतनी हमने अभी पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, BPT एंड ऑल थ्योरम्स पढ़ी हैं। सबसे आसान थ्योरम ये है, एग्जाम में भी आती है। इन PAO PBO, so what we are having here, OA equals to OB। OA और OB क्या है? इक्वल, दिख रहा है ना? क्यों है? रेडियस, तो बोथ आर रेडियाई, तो रेडियस तो इक्वल होगी ना। सेकंड, यहां पर जो एंगल बना, आई कैन नेम इट 1, इट 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अभी 10.1 थ्योरम पढ़ी थी कि रेडियस जो है टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है, सो यू कैन राइट ईच 90 एंड वन मोर थिंग, 3 होती है ना, PO, देखिए ध्यान से, इक्वल्स टू PO कॉमन, PO इक्वल्स टू PO। सो क्या देखा आपने? ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। दो ट्रायंगल आपके PAO और PBO कॉन्ग्रुएंट हो गए। रीजन तो देना पड़ेगा ना, क्यों हो गए? क्योंकि दो साइड और एक एंगल है। साइड एंगल साइड, आप सोच रहे होंगे साइड, कौन सी साइड? साइड, फिर एंगल वो वाला और साइड। तो साइड एंगल साइड के लिए क्या होना चाहिए? एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड, ये अंदर वाला होना चाहिए एंगल, ये वाला। बट यहाँ तो हम दिखाई नहीं पाए कि इक्वल है, बाद में भले ही हो जाएगा इक्वल, लेकिन अभी तक नहीं पता हमें। क्या कर सकते हैं? राइट एंगल, सामने हाइपोटेन्यूज, एक साइड, साइड एंगल साइड में ना सोचे ऐसे, दिस इज RHS क्राइटेरिया बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। एंड यू नो इट वेरी वेल, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। सो PA इक्वल्स टू PB, CP CT से आपने इसको प्रूव कर दिया यूजिंग CP/CT। एंड ऑफ कोर्स आगे के लिए बता रहा हूं, ये तो खत्म हो गया अपना। उसके बाद जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आप, क्योंकि ये भी और ये पार्ट दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। CP/CT से ये भी इक्वल होंगे, CP/CT से ये भी इक्वल होंगे, याद रखना। क्वेश्चंस न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे आप, ये एंगल दिया है वो फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, तो दीज आर वेरी वेरी यूजफुल। सो दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल थ्योरम। entire exercise your 10.2 based on this theorem only। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ ले, लिख ले, इसको दिमाग में फिट कर ले कि बाहर कोई पॉइंट है, अंदर सर्कल में हमने दो टेंजेंट ड्रॉ की, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन आई विल सॉल्व एक्सरसाइज 10.2 और आप भी करेंगे।